हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड डेवलप। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का इंग्लिश बुक का फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम में इसका नाम है द रोड नॉट टेकन, और इस पोएम का जो इनर मीनिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वी कैन रिलेट दिस पोएम विथ आवर लाइफ। So it is telling the road not taken. That means which road we should not take. So in our life also, we are just facing this kind of situation when there are two ways and we have to choose only one way because we could not travel the both way. So that is why this poem is also we can relate with our life. ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इंट्रोडक्शन बोला जा रहा है, दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। हमको एक चॉइस, हमको हमारे जिंदगी में कभी कभी दो चॉइस होता है हमारे सामने, दो या तीन चॉइस होता है जिसमें से एक कोई हमको चूज करना पड़ता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट insightfully about common ordinary experiences. ओके, तो चलिए इस पोएम को हम शुरू करते हैं। The first para, it is telling, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो फर्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज मतलब हम यहाँ पे मीनिंग लिख चुके हैं, सेपरेटेड। Two roads diverged in a yellow wood. Yellow wood refers to forest. Wood refers to forest, and here yellow is signifying the autumn season. You have to remember this thing here. Yellow refers to the autumn season, and wood refers to forest. That means क्या बोला जा रहा है, पोएट एक पॉइंट पे, हमारे जो पोएट है वो एक ही पॉइंट पे खड़ा हुआ है, and there were two roads. Both the roads diverged in a different way and both these roads are going to the forest. That means जो दोनों जो रोड है वो फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है, ठीक है। And here our poet is unable to take the right decision that which road he has to choose. Second line बोला जा रहा है, and sorry I could not travel both. Yes, here poet is one, so he could not travel in both the ways. He has to choose only one and be one traveler. Long I stood, वो वहां पे खड़ा हुआ था हमारे पोएट, and looked down one as far as I could. जहां जितना दूर तक उनका आंख जा रहा था वो सिर्फ देखते रह गए कि कितना दूर तक ये रास्ता जा रहा है। That is why it is telling, and looked down one as far as I could to where it bent. ये कहाँ पे bent होता है, in the undergrowth. Undergrowth मतलब plants, or we can say deep forest. We also can say deep forest. Okay, undergrowth here refers to plants or deep forest. चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सेकेंड पैरा, it is telling, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had owned them really about the same. तो इस पैरा में देखते हैं, हेड यहाँ पे आ गया, शायद हेड यहाँ पे होगा, हेड। देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड पैरा का फर्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, देन टुक द अदर. सो आवर पोएट हैज डिसाइडेड टू टेक द सेकेंड वे. ओके, जो जिस रास्ते को वो अच्छे से देख रहे थे उसको छोड़ के वो दूसरा रास्ता चूज किए. Then took the other just as fair. Just as fair here refers to like fair here refers to as good as the other one. दूसरे की तरह ये भी ठीक ठाक ही होगा. और we can say that both the path looks same.
जो पहला जो रोड देख रहे थे, जिसको वो डिसाइड कर रहे थे इसमें जाएंगे, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया नहीं, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। जो दूसरा रास्ता है, द सेकेंड वन आई हैव टू चूज। सो दैट इज व्हाई ही इज टेलिंग then took the other just as fair here refers to both the path looked similar and having perhaps the better claim. Here having perhaps the better claim, that means better claim here refers to more better path, we can say better option, you can see here more better path. Okay, so he thought that the second option will be the more better option because it was grassy. Why he has decided to choose the second one? Because it was grassy and wanted where. Grassy का मतलब क्या होता है? यहाँ पे grassy बोला जा रहा है, here it refers to not used. That means अगर ये रास्ता grassy है, that means it is less traveled. Okay, so that is why it is telling because it was grassy. That means it was less traveled. And wanted where that means had not been walked. इसमें चला नहीं गया, ज़्यादा लोग इस रास्ते से नहीं गए. That is why it is telling wanted where. Though as for that the passing there had owned them really about the same. थोड़ी देर जाने के बाद पोएट ने दूसरा रास्ता चूज कर लिया, बट थोड़ी देर जाने के बाद उनको पता चला कि बोथ द वे आर सेम. दैट मीन्स दूसरा जो रास्ता उन्होंने चूज किया था, जिसमें वो सोच रहे थे कि ये दिस वे इज लेस ट्रेवल्ड, बट थोड़ी देर जाने के बाद उनको पता चला कि इस रास्ते में भी बहुत लोग आ चुके हैं. तो इस पैरा से हम, इस स्टैंजा से हम क्या सीख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि इस रास्ते से जाए, उसके बाद हमने डिसाइड किया नहीं इस रास्ते में बहुत लोग जा रहे हैं तो आई शुड टेक द सेकेंड वन. हमने दूसरा डिसीजन ले लिया. अब जब दूसरा डिसीजन लेके हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस रास्ते में भी बहुत कंपटीशन है, इस रास्ते में भी बहुत प्रोज एंड कॉन्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है. हाँ, so that is the thing. This thing we can learn from this stanza. So let us read the next stanza, please. And both that morning equally lay. Both here refers to both the road. Both the road क्या था? Equally lay था, एक ही साथ खड़ा हुआ था. वहां पे दो साइड पे दो वे था. both that morning equally lay in leaves no steps had trodden black. in leaves no steps had trodden black. कोई भी स्टेप वहां पे पड़ा नहीं. that means वो ब्लैक नहीं हुआ, वो रास्ता, वो घास जो था वो ब्लैक नहीं हुआ. why? because there were no steps had trodden black. ठीक है, trodden black का मतलब हम बोल सकते हैं कि leaves turned black. ब्लैक नहीं हुआ यहाँ पे, leaves नो बोला गया है ना यहाँ पे, no steps had trodden black. ठीक है. Oh, I kept the first for another day. उसके बाद पोएट ने सोचा कि जो पहला रास्ता वो डिसाइड किए थे एट फर्स्ट, वो रास्ता वो दूसरे कभी कोई दिन वो जाएंगे. So I kept the first for another day because today I have taken the second one. Yet knowing how way leads on to way. क्या होता है इस लाइन में, क्या बोला है? Yet knowing how way leads to one way. Suppose पहले क्या था, ये दो रास्ता था. Suppose ये दो रास्ता था, पोएट ने ये नंबर 1 ये नंबर 2, पोएट ने डिसाइड किया कि इस रास्ते से नंबर 2 से जाए. और जब 2 से जा रहे थे तब देखा गया कि वहां से और दो रास्ता निकल गया. तो वहां पे भी पोएट ने दोनों में से एक रास्ता शायद डिसाइड किया. सपोज इसको डिसाइड किया, उसके बाद वहां पे देख रहे हैं कि और दो रास्ता निकल गया. ऐसे ही रास्ता बैंड होते जा रहा था. दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते से लिंक कर रहा है, लीड कर रहा है. ठीक है. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. मुझे डाउट हो रहा है कि अगर मैं शायद ही कभी लौट के आ सकूं या फिर नहीं. ठीक है. और ट्रॉडन का मतलब मैं वहां पे बोल दिया था आप लोगों को शायद, वॉकड ओवर, चलना. ठीक है. तो हमारे इस स्टैंजा से हम क्या सीख सकते हैं? इस स्टैंजा से हम सीखते हैं कि हमारे जिंदगी में ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम डिसाइड कर लिए कि इस रास्ते से जाए. दैट मीन्स वी हैव टू चूज दिस डिसीजन. हमने
डिसीजन लेके जा रहे हैं। उसके बाद देखा गया कि कुछ देर जाने के बाद और दो वे आ रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक अगेन एनी वन डिसीजन। तो शायद वहां पे भी हमने डिसीजन ले लिया, उसके बाद हम सोच रहे थे कि वहां पे जो पहला रास्ता जो हम छोड़ के आए थे, ठीक है, उस रास्ते के बारे में हम छोड़ के आए, उस रास्ते के बारे में हम सोचते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि ठीक है, अगले कोई दिन हम उस रास्ते से जाएंगे। और आखिर में हमारे पॉइंट क्या बोल रहा है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। दैट मीन्स आपको भी ऐसा कभी लगता होगा कि पता नहीं मैं कभी उस पॉइंट पे जा भी पाऊं या फिर नहीं। ओके, दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। दिस इज द लास्ट वन। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन ए wood and I took the one less traveled by। जो less traveled था वही रास्ता मैंने चूज किया था, and that has made all the difference। तो क्या होता है लास्ट पैरा में हमारे पोएट क्या बोल रहे हैं, I shall be telling this with shy। Here shy refers to taking a deep breath। जिंदगी में कभी, मतलब पोएट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम I shall be telling this with a shy। मैं एक डीप ब्रेथ लेके बोल सकता हूँ क्या, somewhere ages and ages here refers to in the future time, in the future में कभी मैं ऐसे डीप ब्रीथ लेके मैं बोल सकता हूँ कि जिंदगी में कभी वो दो रास्ते थे जहां से मैंने दूसरा रास्ता पिक किया था। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, उस समय के बात बोला जा रहा है कि जहां पे पॉइंट खड़ा हुआ था और दो साइड में दो रास्ते जा रहे थे, एंड ही वाज अनएबल टू डिसाइड दैट व्हिच रोड ही हैज टू चूज। ओके, तो उस दिन के बारे में वो सोच रहे हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने लिया था जो लेस ट्रेवल्ड था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो इस स्टेंजा को हम कैसे हमारे लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं, शायद आप देख सकते हैं कि कभी कभी आपके 10th और 12th के बाद ऐसा होता है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर आप एक डिसीजन ले लिया, उसके बाद आप चल रहे हैं, 4-5 साल हो गया, आपने स्टडी कर ली, उसके बाद क्या होता है, आप एक परफेक्ट प्लेस पे खड़े होते हैं, आप एक समथिंग आपको अचीव हो चुका है। उसके बाद आपको वो दिन याद आता है जिस दिन आपने ये डिसीजन लिया था कि मुझे इस वे से ही जाना है। सपोज एक 12th करने के बाद एक स्टूडेंट क्या करता है, एक 12th करने के बाद एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि, और 10th के बाद सोचिए, 10th के बाद एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मुझे साइंस लेना है या फिर आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। सपोज आपने आर्ट्स ले लिया, आपके दोस्तों शायद सभी ने साइंस ही लिया होगा। हाँ, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम 5-6 साल 10 साल के बाद आप देख रहे हैं कि आप जहाँ पे खड़े हैं बहुत ही बढ़िया है। तो तब आपको वो दिन याद आएगा कि जब मैंने आफ्टर 10th आफ्टर बोर्ड मैंने डिसाइड किया था मैं आर्ट्स लेके पढ़ूंगा, लाइक दैट। ओके, तो ऐसे ही हम इस पोएम को रिलेट कर सकते हैं हमारी जिंदगी के साथ। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस एंड द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पैरा देखिए, पहले मैं बोल देता हूं राइम स्कीम जो है हमारा इस पोएम का राइम स्कीम है A-B-A-A-B। ठीक है, ए इसको बोला जाता है बी, ये भी ए, ये भी ए, एंड देन लास्ट वन इज बी। ये कैसे होता है राइम स्कीम मैं आपको बोल देता हूं। वुड ए, इसको पकड़ लिया, बोथ मैच नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई वी हैव टू डिसाइड इट एज ए बी। स्टूड, देखिए वुड एंड स्टूड राइम कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज ए कुड, दिस इज ऑल्सो ए, वुड स्टूड कुड। ठीक है, ए और बोथ एंड अंडर ग्रोथ, देखिए मैच कर रहा है, राइम कर रहा है, दैट इज बी। सो लाइक दिस वी कैन डिसाइड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ठीक है, A-B-A-A-B। नाउ लेट अस डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पे
रोड्स, यहाँ पे रोड्स जो है, रोड्स को हम मेटाफोर बोल सकते हैं। तो मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर इज दैट द इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। यहाँ पे रोड को लाइफ के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट हियर रोड इज ए मेटाफोर, रोड्स हियर ए मेटाफोर, ठीक है। रोड को लाइफ के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लाइफ, ठीक है। देन इस पर मैंने सेकंड लाइन में देखिए, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन एंड से शुरू हो रहा है। When two or more consecutive line is starting with the same word, then it is called anaphora। इसको क्या बोला जाता है? एनाफोरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंड से शुरू हुआ है, दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस इज एनाफोरा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैरा। यहाँ पे भी राइम स्कीम सेम ही है, ए बी, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं एज, जस्ट एज फेयर, हियर एज इज अ सिमिलर, द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स इज कॉल्ड सिमिली, ओके। सिमिली, SIMILI, okay, this is called simile। when two things is compared directly, that is called simile। as और like जब रहता है तो उसका हम वो simile बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या है, हाँ, wanted where, आप देख सकते हैं WW, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। when two consecutive word is starting with the same consonant sound, then it is called alliteration। इसको हम alliteration बोल सकते हैं, ठीक है, WW। और एक देखिए alliteration यहाँ पे है, where is this, हाँ, that the TH, this is also a consonant sound, the sound is repeating here, ठीक है। then we can see, इस पैरा में और तो कुछ लिटरेरी डिवाइस है नहीं। चलिए नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। इन दिस पैरा यू कैन सी दैट यस हियर ओ दैट मीन्स हियर रेफर्स टू any sound। when representation of any sound is called onomatopoeia, ठीक है। representation of any sound is called onomatopoeia, ठीक है। this is onomatopoeia। then we can see in the last para, इस पैरा में और तो है कुछ नहीं। चलिए लास्ट पैरा में हम जाते हैं, लास्ट स्टैंजा में। in this last stanza we can find here repetition, ages and ages। देखिए यहाँ पे ये रिपीट किया जा रहा है, कोई वर्ड अगर रिपीट होता है तो उसको हम रिपीटेशन बोलते हैं। ages and ages, here the repetition, ठीक है। सो यहाँ तक ही है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड फॉर द अदर वीडियोज, फॉर द अदर चैप्टर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको अगर कोई स्पेसिफिक कोई चैप्टर में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। क्लास 9th 10th 11th 12th में धीरे धीरे एक एक करके कवर करूँगा। अगर आपको स्पेसिफिक कोई चैप्टर में आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो ज़रूर प्रिपेयर करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं। ये भी एक डिमांड था, कोई स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर प्लीज़ कवर द रोड नॉट टेकन, दैट इज़ वाई आई मेड इट। सो ओके, सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।